So, okay, what we will discuss today is some of the common behavioral problems. So, we will discuss about some of the common most behavioral problems that we will see in day-to-day clinical practice. So, it may be in the OPD level, the common problems, behavioral problems related to infant, related to toddler, okay, where the parents are very much worried. Okay, so most of the time they will land up in unwanted investigations. So when they are more worried, what we will do? We will write so many investigations to confirm the things. So that the reason is we don't have a clear-cut idea about that particular problem. Therefore, the unwanted investigations are made. Anyway, we will see some of the common most behavioral problems in the early childhood period or toddler period. So first one is eating habit disorders. Eating habit disorders. Okay. और हम बोलते हैं फूड फजीनेस, खाना नहीं खाता है, खाना खाता ही नहीं. दिस इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ऑफ कोर्स at the age of 2 year, 3 year, 4 year, if a mother is coming to you, this is the most common problem. बच्चा खाना नहीं खाता है, कुछ भी नहीं खाता है. So now, खाना नहीं खाना, this is quite common during the age of infancy. Okay, during the time of the infancy, this is quite common. The reasons are many. During the infantile period, baby is not taking properly feed or food. Many reasons are there. The most common cause is secondary to bottle feeding. Once you make a habit of bottle feeding, thereafter child will go into refuse the other foods. Okay, so this is one of the most common thing. Or sometimes even the prolonged breastfeeding. Prolonged breastfeeding means the baby's age is now 12 month old. Still you have not implemented or started the supplementary food. You are only giving the breast milk. Breast milk अच्छे से आ रहा था और उसी को दे रहा हूँ मैं. 12 महीने हो गया. ठीक है. Now if you start the outside food at this particular age, so child will show a resistance. Child will not take it because it is habituated for the breast milk. So breast milk should be given exclusively for 6 months, but after 6 months you have to stage wise you have to start the supplementary feeding. And if you keep on giving the breast milk only by the age of 12 months, then it will create the problem along with so many nutritional issues also. Okay, so this is second important cause. Prolonged exclusive breastfeeding is also one of the cause. Okay, now another one is forced feeding. बहुत जबरदस्ती आप बच्चे को खिला रहे हो. So that also one of the basic problem. Child is 6 month old and you are giving so many things forcefully. ठीक है. So it should be made palatable and baby should like it, then it should be given. Suppose if you जो भी अंदर आप डाल रहे हो सीधा, ठीक है, डस्टबिन जैसा अंदर डाल रहे हो, तो that can create a negativity and food aversion. बच्चा जो है एक food aversion में जा सकता है. Usually what we will do is we will try for 1 or 2 times. मदर क्या करती है, 1 या 2 बार उसको कोई फूड दे दी, 2 बार उसने नहीं खाया तो उसने क्या करती है फूड चेंज करती है, दूसरा फूड. ठीक है, उसको 2 बार देती है, नहीं खाया तो दूसरा फूड में चला जाती है. देयर इज अ रूल दैट एटलीस्ट बिफोर चेंजिंग एनी फूड आइटम टू द किड्स, एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई फॉर 10 to 11 times. 10 to 11 times by giving proper time you have to try it. And after 10 times also, if the baby is not taking the food, then you have to think of changing the food or taste of the food, changing the taste of the food. Okay, so this is one important thing. Another important thing for food fuzziness is tongue thrust. So if you are trying to give the external feed before 6 months, up to 6 months हम बिलीव करते हैं बच्चा जो है टंग थ्रस्ट रहता है, कुछ भी आप दे दो वो तो बाहर ऐसा फेंकेगा, कुछ भी दे दो. ठीक है. So therefore we say that during this time you have to go for exclusive breastfeeding, and after 6 months you have to start with the external feed because tongue thrust will going to disappear by this age. When tongue thrust is present, that time you are forcibly giving the external feed. So now baby start aversion and start throwing out everything outside, and baby is also frustrated and mother is also frustrated. Mother बहुत जल्दी ट्राई कर दिया और बोलना शुरू कर, मैं तो सब कुछ ट्राई कर लिया, वो कुछ नहीं खाता है. बट आप कब दे रहे हो, जब उसको टंग थ्रस्ट है तब दे रहे हो. देना शुरू करो 6 महीने के बाद. टंग थ्रस्ट जब थोड़ा कम हो जाता है उसके बाद शुरू करो. ओके, दिस इज वन मोर इम्पोर्टेंट कॉज. टंग थ्रस्ट का मतलब है जो भी वो दे रहे हैं ना कि वो अंदर नहीं लेगा, जो भी आप ऐसे डालते हैं ना उसको ऐसे बाहर फेंकेगा. ये नॉर्मली रहता है बच्चों में.
एज द मेच्योरिटी टेक्स प्लेस है ना, ये अपने आप डिसअपियर हो जाता है. ओके, दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग. Another one is a distraction. The child is not taking the food. Mother complains, but there are so many distractions are there. वहाँ से टीवी चल रहा है और इधर से कोई बात कर रहे हैं, ठीक है, आप ओपन एरिया में कुछ कर रहे हैं और कोई उससे बात कर रहे हैं, बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, उसके बीच में आप खिला रहे हो, तो बच्चे को बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है. सो बिकॉज ऑफ दिस डिस्ट्रैक्शन बेबी मे बी डाइवर्टेड टू दैट. एंड बच्चे को क्या पता है, वो तो भूल जाता है, उसी को वहीं पे टीवी देखते रह जाता है. कहीं से आवाज़ आता है तो वहाँ पे देखना शुरू कर दिया, तो खाना वो भूल जाता है. सो डिस्ट्रैक्शंस भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉज है. सो इसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए. ओके, देन अलाउिंग द स्नैक्स इन बिटवीन द मील्स, दिस इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग. थोड़ा बड़ा बच्चों में जो है, आपका जो 3 मील है, सुबह दोपहर और शाम को, अगर आप रात को अगर फिक्स किया है, जो भी है टाइम गैप में फिक्स किया, इसके बीच में उसको कुछ खाने के लिए आप देंगे तो भी जो है ये इंपॉर्टेंट कारण है. ओके, सो यूजुअली स्नैक्स आप दे रहे हैं बीच बीच में, थोड़ा छोटा छोटा स्नैक्स दे रहे हो, ठीक है. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज फॉर फूड फिजिंग. ठीक है. सो दिस आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉज. नाउ हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन? हैंडलिंग इज वेरी सिंपल. यू हैव टू गो फॉर काउंसलिंग ऑफ द पेरेंट्स. एक्चुअली यहाँ पे ये पूरा इशू जितने भी है, बच्चे का कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक है. देयर इज नो फॉल्ट फ्रॉम द बेबी साइड और चाइल्ड साइड. वी आर प्रैक्टिसिंग इट इन अ रॉन्ग टाइम, वी आर प्रैक्टिसिंग इन अ रॉन्ग वे, और वी डोंट हैव द पेशेंस. ठीक है, हमें जल्दी जल्दी काम खत्म करके जाना है कहीं, तो हमारे पास टाइम नहीं है. सो दैट इज एक्चुअली प्रॉब्लम. बट इफ़ यू गिव द सफिशिएंट टाइम, देन द थिंग्स विल बी करेक्टेड. सो जहाँ जहाँ पे गलती हो रहा है, यू हैव टू काउंसिल द पेरेंट्स. ठीक है, पेरेंट्स को काउंसलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. ओके, सो कॉमन मोस्ट प्रॉब्लम विच इज एनकाउंटर्ड. अनदर कॉमन प्रॉब्लम इज पाइका. Okay, pica. This is also complained by the mother. Okay, pica refers to eating of any non-edible substances, non-nutritious substances. ठीक है, वो कुछ भी हो, प्लास्टर, चौक, चूना, मड, रबर आइटम्स, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, एनी नॉन न्यूट्रिशियस सब्सटेंस को जब बच्चा खाता है, तो यूजुअली वी विल कॉल इट एज अ पाइका. ओके, इफ इट इज ईटिंग मड, देन इट इज कॉल्ड एज जियोफेजिया. ठीक है, एंड इफ इट इज ईटिंग दी mud, it is called as geophagia. If it is eating the trichophagia, if it is eating the hairs. एक पेशेंट आया था लास्ट ओपीडी में जो काउंसलिंग कर रहा था मैं. सो ओके, ट्रिकोफेजिया है, सो वह हेयर्स को खाता है बच्चा. सो दिस आर द हैबिट्स. बट ईटिंग एनी सच नॉन न्यूट्रिशियस थिंग इज कॉल्ड एज पाइका. ओके, नाउ इन द इन्फेंटल पीरियड व्हेन चाइल्ड स्टार्ट ईटिंग दिस पाइका, चॉक पीस है, जो भी है, मिट्टी वगैरह जो भी है, सो यूजुअली वी एज्यूम दैट कि इन्फेंटल पीरियड में जो है माउथिंग रहता है. माउथिंग दैट मीन्स जो भी हाथ में आएगा उसको जो है मुंह में डालता है. माउथिंग इज कॉमन इन द इन्फेंटल पीरियड. ओके, बट व्हेन यू सी इवन द माउथिंग ऑल्सो, बच्चा हर चीज़ को नहीं डालता है. जो नॉन न्यूट्रिशियस थिंग को यूजुअली एक नॉर्मल बच्चा नहीं डालता है. माउथिंग इज कॉमन, वी एग्री, बट माउथिंग इज ऑल्सो इज नॉट कॉमन फॉर नॉन न्यूट्रिशियस थिंग. है ना, ऐसा थोड़ी है कि बच्चा पत्थर खा रहा है या कंकड़ खा रहा है, ऐसा नहीं है. ठीक है, वो कुछ भी है जो उसको इरिटेशन हो रहा है मुंह में, या टीथिंग का टाइम है, जो भी है, तो कुछ हार्ड सब्सटेंस को ले सकता है. बट ऐसा नहीं है कि वो नॉन एडिबल सब्सटेंस को ही खा ले हमेशा. सो दिस इज़ वन थिंग. समझ में आ गया? सो माउथिंग तो कॉमन है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि माउथिंग का चक्कर में जो है वो सब कुछ मुंह में डाले. ऐसा भी नहीं मिलता. यूजुअली जो प्रैक्टिस में मिलता है कि बहुत सारे इतने सारे बच्चे होते हैं, तो वो ऐसी नॉन न्यूट्रिशियस थिंग को मुँह में नहीं डालते. कुछ ही बच्चे जो है ऐसी नॉन न्यूट्रिशियस थिंग को मुंह में डालते हैं. दिस इज वन पॉइंट. सेकेंड इज यूजुअली जब भी माउथिंग इस तरीके का होता है, माउथिंग सॉरी पाइका होता है, तो यूजुअली कॉमनली पब्लिक में क्या बोलते हैं? पब्लिक में तो यही बोलते हैं कि इसको खून का कमी है, आयरन डिफिशिएंसी है. ठीक है, सो दिस इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल. सो अगर ये पाइका खा रहा है तो कोई ना कोई इसको आयरन का कमी है या कैल्शियम का कमी है. ठीक है, दिस इज व्हाट से. सो यूजुअली जो बच्चे पाइके खाते हैं उसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मिलता है. ठीक है, बट इसका बीच का जो रिलेशनशिप अभी भी क्लियरली अंडरस्टूड नहीं है. वेदर पाइका इज कॉजिंग द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, वेदर देयर इज एन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू, दैट इज स्टिल नॉट आइडेंटिफाइड. बट यूजुअली इन द पेशेंट्स वी सी, जो पाइका का पेशेंट है उसमें जो है यूजुअली आयरन डेफिशिएंसी मिलता है. सो यूजुअली इफ यू सी माई ओपीडी स्लिप, आई विल राइट वन आयरन प्रिपरेशन. ठीक है, इन सच कंडीशन मे बी दातर लोहा और सम अदर थिंग्स. ओके, कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर. इट मृत भक्षणजन्य पांडु जो हम बोलते हैं,
उससे आप थोड़ा बहुत इसको कोरिलेट कर सकते हैं. बट पीपल ऑल्सो से दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ द कैल्शियम डिफिशियंसी. इट इज़ बिकॉज ऑफ कैल्शियम का कमी है. हम तो वंशलोचन भी लिख के देते हैं. बट एक्चुअली अगेन द स्टडीज शो दैट देर इज नो सच रिलेशनशिप दैट कैल्शियम डिफिशियंसी इज एसोसिएटेड विद द पाइका ईटिंग. ऐसा कोई भी स्टडी अभी तक नहीं हुआ है, कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं है. ठीक है. इफ़ यू गो टू द कॉन्टेम्पररी साइंस दे यूजुअली से दैट दिस इज ए मिथ. ये एक गलत बिलीफ है, ऐसी बोलते हैं. ठीक है. बट वी यूज टू गिव सो मेनी सुधा वर्गर ड्रग्स एंड वी ऑल्सो गिव दी वंशलोचना एक्सेट्रा विच इज क्वाइट रिच इन कैल्शियम. इधर उधर का कुछ खाने से अच्छा है कि आप वंशलोचन खाओ, कम से कम कैल्शियम तो अंदर जा रहा है. इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को कैल्शियम डेफिशिएंसी है. ओके. नाउ देन व्हाई दिस इज हैपनिंग. आयरन डिफिशिएंसी के साथ कोई रिलेशनशिप प्रूव नहीं हुआ है, कैल्शियम के साथ भी रिलेशनशिप प्रूव नहीं हुआ है, फिर भी बच्चा ऐसा क्यों करता है, ये टेंडेंसी बच्चों में क्यों आता है. तो इफ़ यू सी दैट द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम यूजुअली विल नॉट टेक दिस हिस्ट्री बट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टेक दिस हिस्ट्री. मतलब से हमें पूछना चाहिए क्या है कि देर इज़ लैक ऑफ पेरेंटल नर्चरिंग. बच्चों को जिस तरीके से रेयरिंग करना है, चाइल्ड रेयरिंग, वो या तो मदर को नहीं पता है. ओके. और शी इज़ डूइंग इन अ फॉल्टी वे. यूजुअली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होता है. और देर इज़ फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन. फैमिलियल कॉम्प्लेक्स रहता है. मदर अकेले रहती है, फादर अकेला रहता है, या कोई देखभाल करने वाला नहीं है, मदर स्ट्रेस में रहती है. इस टाइप का सिचुएशन रहता है. ठीक है. और देर इज पुअर सुपरविजन. नोबडी इज कैरिंग द बेबी, लिफ्टिंग द बेबी, पैम्परिंग द बेबी. पुअर सुपरविजन रहता है. ठीक है. और देर इज सम साइकोलॉजिकल निग्लेक्ट. जो साइकोलॉजिकल निग्लेक्ट रहता है, बच्चे का जो है साइकोलॉजिकल केयर, बच्चे को जो है सिक्योरिटी फीलिंग, तो ये सब जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है. Okay, so if you take the proper history, you will identify all these conditions. Otherwise, you superficially write some medication and you will send it. Okay, if you want to treat this problem from the base, शुरू से उसको आप ट्रीट करना चाहते हैं तो you have to take a history, then you will find one of this. Either mother is a working woman, she is very busy, she is not able to give proper time to the kid, और family disorganization हुआ है. ठीक है. या तो घर में बहुत सारे लोग हैं, कोई मदर का बात को कोई रेस्पेक्ट ही नहीं देता है, बड़े बड़े दादी नानी सब कुछ है, उसी का ही चलता है, और मदर का जो है चलता नहीं, जैसे वो बोलते हैं वैसे ही चलता रहेगा. ठीक है. आइदर टू लेस मेंबर्स इन द फैमिली लाइक सिंगल मदर एक्सेट्रा, और मोर मेंबर्स इन द फैमिली, बोथ कॉज द प्रॉब्लम. और प्रॉपर सुपरविजन इज नॉट टेकिंग प्लेस. रियल कॉज ये होता है उसको. बाद में हम बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी है, कैल्शियम डेफिशिएंसी, जो भी लोग बोलते हैं, एक्चुअली कॉज ये होता है कि बच्चे का जो देखभाल ठीक से नहीं हो रहा. ठीक है. इट मे बिकॉज ऑफ मेनी कॉजेस, देयर आर मेनी कॉजेस. ओके. नाउ दूसरा एक कंसर्न है कि जब भी इस टाइप का चीज़ होता है, सो पाइका खाता है, तो यूजुअली लोग ये सोचते हैं कि ये दिमाग से सही है क्या, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि जो मिट्टी वगैरह खाता है तो इसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होना चाहिए. ठीक है. मेंटल रिटार्डेशन. ऐसा तो नहीं है कि मेंटल रिटार्डेशन का शुरुआत स्टेज है इसलिए ये पाइका खा रहा है, नहीं तो ये एबनॉर्मल चीज़ को क्यों खाएगा वो. ओके. अगेन इट इज़ वेरी क्लियर दैट कि पाइका ईटिंग इज नॉट एसोसिएटेड विद मेंटल रिटार्डेशन. ऑफकोर्स पाइका ईटिंग मेंटल रिटार्डेड से भी ज़्यादा नॉर्मल बच्चों में ही मिलता है. आप इंसिडेंट्स वाइज देखेंगे तो मेंटल रिटार्डेड बच्चे जो है पाइका ईटिंग नहीं करते ज़्यादा, ये तो नॉर्मल बच्चे करते हैं. ठीक है. देयरफॉर पाइका ईटिंग इज नथिंग टू डू विद दी क्या है कि मेंटल रिटार्डेशन.